So, welcome everyone. All right. So, how are you all doing? And how is the topic of latitude and longitude fixed in your mind? Okay, so assuming that you are able to understand whatever we are doing and you're able to get what are latitudes and what are longitudes. Today we will be completing the chapter. आज हम आपका chapter finish करने वाले हैं. And we'll be revising all the topics that we have covered in this chapter once again. हम पूरे topics इसमें revise करेंगे. Okay, so without wasting any time, let's begin this and just quickly have a look to all what topics we have done, because हमें बार बार revise करना is very important. Until and unless you will not be revising the things again and again, you will not be able to understand it. Okay, we started our understanding of the topic with globe. Globe kya hota hai? Then we moved ahead discussing about axis. Then we discussed about equator. I think now you are so much familiar with these terms. आप बहुत अच्छे से familiar हो चुके हैं. And अब आपको ये mind में click भी हो रही होंगी चीजें कि क्या होता है. Equator is the 0 degree equator dividing the globe, right? The northern half of the earth is known as northern hemisphere and southern hemisphere. We talked about northern hemisphere, we talked about the southern hemisphere, right? Then we talked about the parallels of latitude. कौन से important parallels of latitudes हैं? We discussed this diagram and we can see the important parallels of latitude as well as the heat zones. Equator, Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer, Arctic Circle, Antarctic Circle. Then we read about the zones, heat zones, torrid zone, temperate zone, frigid zone. All right. I hope that you can recall all these points. We'll be quickly finishing the chapter and then we will be discussing the whole chapter once again so that आपको बिल्कुल picture clear हो जाए इस chapter की. I understand that the chapter is a little bit difficult, so you need to have a very clear understanding of the chapter. In the previous lecture, we started with what are longitudes and I explained you with the example of burger. हमने एक burger की example से इसको समझा था. अगर आप burger को बिल्कुल center में से cut करते हैं, vertically अगर आप cut करेंगे, so you will get the western and the eastern parts. That is western hemisphere and the eastern hemisphere. And if you cut the burger from the center horizontally, you will be getting it as northern hemisphere and southern hemisphere. I hope you remember it. ठीक है. And then we discussed about कि longitudes को हम कैसे measure करते हैं, degrees में measure करते हैं. Degrees आपके further divide होते हैं minutes में, then minutes are further divided into seconds. We talked about the British Royal Observatory जो कि Greenwich पर located है. Greenwich आपका एक town है, town which is located in England. England में ये located है. वहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एक प्लेस है, पूरी बिल्डिंग है बहुत बड़ी, वहां ये लोकेटेड है. प्राइम मेरिडियन किसे बोलते हैं? आई एक्सप्लेन्ड यू मेनी अ टाइम्स, वेयर बाय आई एक्सप्लेन्ड यू वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. टोटल लॉन्गिट्यूड्स आपके 360 होते हैं. ईस्टर्न साइड में यू विल गेट 180 और इधर भी आपको कितने मिलेंगे? 180. We are just quickly revising it because after that we'll be watching some amazing videos to make your concepts clear. We moved ahead discussing all this and then आपके हमने ये मैप भी डिस्कस करा था जहां पर I told you ग्रीनविच से अगर हम ईस्ट में मूव करते हैं then time is ahead 15 डिग्रीज. अगर आप देखेंगे ग्रीनविच यहाँ पर है, दिस इज द ग्रीनविच लाइन, ये आपकी ग्रीनविच लाइन है. अगर यहाँ 12 बज रही होगी, दिस इज योर 0 degree ग्रीनविच. एंड इफ इट इज योर 15 डिग्रीज, ये आपका 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होगा. देन मतलब 15 डिग्री की लॉन्गिट्यूड पे आप देखेंगे 1 आवर का आपको डिफरेंस मिलता है. सो 15 डिग्री यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 1 बज रही होगी. देन इफ यू मूव अहेड, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 2 बज रही होगी. सो दैट मीन्स यू नीड टू एड अप हियर. यहाँ पर आप क्या करते हैं? एडिशन करते हैं और इधर आप क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं. दैट मीन्स अगर आप इधर मूव करेंगे तो यहाँ 12 बज रही है लेकिन यहाँ 11 बज रही होगी. फिर आप उससे नीचे देख सकते हैं 10, 9,
ठीक है, देन यू कैन सी हाउ यू आर मूविंग, नो, सो यू कैन सी हियर बेसिकली बैक जो वेस्ट है, वेस्ट में आपका टाइम पीछे चलता है, वेस्टर्न नेशंस में आपका टाइम पीछे मूव करता है, एंड ईस्टर्न नेशंस में जो आपका टाइम है वो अहेड मूव करेगा। क्लियर? Okay, so coming further ahead, we discussed this map, we discussed about longitude and time. हमने longitude and time के बारे में discuss करा था कि हम कैसे कैसे time को measure करते हैं, and then we discussed this complete calculation. हमने यहाँ पे पूरी calculation discuss करी थी, whereby I told you अर्थ आपकी 360 डिग्री पूरी की पूरी रोटेट करती है 24 आवर्स में। ठीक है, तो अब एक घंटे में अर्थ का हमें रोटेशन देखना है, सो 1 आवर में अगर आप देखेंगे तो इट विल बी 15 डिग्रीज। ठीक है, 1 आवर में 15 डिग्रीज। सो दिस इज हाउ आप देखते हैं कि हमने पूरी कैलकुलेशन देखी थी। आई टोल्ड यू अबाउट दिस कैलकुलेशन, राइट? एंड विद दिस इन द लास्ट लेक्चर वी फिनिश्ड आवर टॉपिक टिल हियर। आप एक बार नोट्स देखिए यहाँ पर, दैट आई ऑलवेज शो यू दैट व्हाट आई हैव मेड। पूरे के पूरे कंपाइल्ड पॉइंटर्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। ग्लोब, एक्सिस, we discussed about equator from here, मैंने आपको यहाँ से पूरा रीड करके बताया था। we talked about parallels of latitude, right? कौन कौन से इंपॉर्टेंट 4 parallels of latitude है यहाँ भी हमने डिस्कस करा था। we discussed this diagram as well. I told you about the heat zones of the earth, torrid, temperate and frigid zone. moved ahead now, yeah, in the last lecture we discussed about longitudes. हमने longitudes के बारे में पढ़ा है। कॉन्सेप्ट हमने देखा दैट हमें किसी भी प्लेस की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों पता होने चाहिए। देन हमने देखा था कि जो आपके टोंगा आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशस आइलैंड्स कहाँ हैं, इंडियन ओशन में है ना? तो इन दोनों को अगर हमें लोकेट करना है, सो फॉर दैट मैटर हमें लाइंस ऑफ रेफरेंस चाहिए, एंड लाइंस ऑफ रेफरेंस कौन सी होंगी? आपकी लॉन्जिट्यूड की। ठीक है, देन ये सब हम कंप्लीटली आपकी बुक में से रीड करके आए हैं। इट इज ओनली दैट आई हैव जस्ट कंपाइल्ड ओवर हियर इन द पॉइंट्स, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में कंपाइल करा है। देन कॉन्सेप्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, मिनट्स इनटू सेकंड्स, राइट? डिग्रीज, देन डिग्रीज के बाद में मिनट्स, एंड मिनट्स के बाद में सेकंड्स। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल्स होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडली टूवर्ड्स पोल, जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड्स पोल के पास में जाते जाते हैं। आप ये यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ कंपाइल होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। डायग्राम देखिए, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ऐसे डायग्राम्स आप एग्जाम्स में बना के आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव रेड इट फ्रॉम योर बुक एज वेल। मैंने बुक्स को, बुक के जो पॉइंट्स हैं उनको यहीं पर कंपाइल करा है। आई हैव कंपाइल्ड ओवर हियर द पॉइंट्स ऑफ बुक्स ओनली। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी आप देख सकते हैं कहाँ लोकेटेड है, ग्रीनविच में लोकेटेड है। ठीक है, सो दिस मेरिडियन इज कॉल्ड एज द प्राइम मेरिडियन। इसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है। इस मेरिडियन से हम 180 डिग्रीज ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड काउंट करते हैं। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों तरफ आपको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज अ ग्रिड? देखो, ग्रिड वो होता है जहां पर लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड दोनों मिल जाते हैं। दिस इज, जब आप देखेंगे आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मीट कर रहे हैं तो ये एक ग्रिड बनाते हैं, इसको बोला जाता है ग्रिड। दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड। Then we discussed longitude and time. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. Earth ka movement, moon ka movement and the movement of the planet. Also, sun is important means of recognizing the time. ठीक है, फिर आप देखते हैं कि हम shadow, through the shadow we can find out कि कितनी बज रही होगी, क्या टाइम हो रहा होगा। सो अगर आप देखें तो शैडो शॉर्टेस्ट कब होती है? नून, दैट इज 12 नून। एंड द लॉन्गेस्ट दैट यू सी, जो आपके ऑब्जेक्ट की शैडो है वो लॉन्गेस्ट कब होगी? इधर एट सनराइज और सनसेट। ओके, देन वी डिस्कस्ड अहेड ऑल दिस थिंग। जब आपका प्राइम मेरिडियन,
के ऊपर बिल्कुल सन होता है तो वहां पर मिड डे होता है, नून हो रहा होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डायग्राम एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका ग्रीनविच मेरिडियन है और यहाँ पर अगर सन है ओवरहेड तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 12 बज रही होगी, दिस इज द मिड डे टाइम, यहाँ पर मिड डे हो रहा होगा, क्लियर। और अर्थ आपकी मूव कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट। फिर हमने वो कैलकुलेशन देखी थी, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस विच आर ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ऐसी प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट में है, दे विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। अगर यहाँ पर 12 बज रही होगी ग्रीनविच पर तो आप देखेंगे कि इधर कितना बज रही होगी, 1, ठीक है। दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पीछे चल रहे होंगे, यहाँ पर आपकी 11 बज रही होगी। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 12 से 1 के बीच का, ये जो डिफरेंस है, इधर आपके 11 वेस्ट में क्यों 11 बज रही है, ईस्ट में आपकी 1 बज रही है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है पूरा का पूरा आपका 1 आवर का, वो पूरा आपका यहाँ पर कैलकुलेट करके हम समझ सकते हैं। दिस इज द कैलकुलेशन विच इज टेलिंग यू कि वेस्ट में माइनस क्यों हो रहा है 1 आवर एंड ईस्ट में 1 आवर अहेड क्यों चलते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दैट 24 आवर्स में आपका अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्रीज, 1 आवर में अर्थ का रोटेशन कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 15 डिग्रीज। और वी कैन से आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 डिग्री का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 1 डिग्री में कितना होगा, सो 60 अपॉन 15, दैट मीन्स so you can see over here, but at 15 degree west you can just read from here as well so that you can know, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि the earth rotate 360 degree in about 24 hours which means 15 degree an hour और 1 degree in 4 minutes। तो 1 डिग्री में कितना रोटेशन देख रहे हैं हम, 1 डिग्री में 4 मिनट्स, 4 मिनट लगते हैं इसको 1 डिग्री कवर करने में, ठीक है। सो 1 डिग्री कवर करने में कितने मिनट लग रहे हैं, 4 मिनट्स, ठीक है। सो दैट मीन्स वी कैन से 1 डिग्री जो अर्थ आपकी कवर करती है वो 4 मिनट्स में कवर करेगी। क्लियर। So you can read from here also and I have written in the notes format also. ठीक है। सो 1 डिग्री 4 मिनट्स, दैट मीन्स कि अगर आपका अर्थ से फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री से 11 डिग्री पर जाता है तो 10 से 11 डिग्री पर जाने में इसको कितनी देर लगेगी, 4 मिनट, 4 मिनट लगते हैं इसको, ठीक है। सो 10 डिग्री से अगर ये 11 डिग्री पर मूव करेगा तो इसको कितने मिनट्स लगेंगे, 4 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। ऑल राइट। So now today we will be discussing about this particular topic that why do we have standard time। अब देखो हमारे पास में एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों होना जरूरी है, अगर एक कोई स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड नहीं करा जाएगा तो इट विल बी लाइक कि हर जगह अलग अलग टाइम हो रहा होगा, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाएंगे टाइम चेंज हो जाएगा एंड देन यू विल कीप ऑन चेंजिंग योर वॉच ऑल द टाइम, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करा गया है, ठीक है। The local time of places which are on different meridians are bound to differ।
For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference about 1 hour 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard meridian for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. तो इंडिया में आप देखें यहाँ से 82.5 डिग्रीज निकलता है, दैट इज ईस्ट लॉन्गिट्यूड. सो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हमने सेलेक्ट करा है हमारी कंट्री के लिए, जिसे स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है. एंड द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. और इसको क्या बोला जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इसको बोला क्या जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज दिस इज अ लाइन ऑफ रेफरेंस जो हमने हमारी कंट्री के लिए ली है. और इस लाइन ऑफ रेफरेंस से हम देख सकते हैं कि हमारा टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखेंगे ऑल ओवर द कंट्री एक सेम टाइम रहेगा. अगर हम इस स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर जगह आपको अलग अलग टाइम मिलेगा. Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and it will finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से टाइम डिफरेंसेस आते हैं. India, located east of Greenwich at 82 degrees 30 minutes east, is 5 hour 30 minutes ahead of the Greenwich Meridian time. That means जो आपकी ग्रीनविच वाली लाइन थी, उस ग्रीनविच से अगर हम हमारी कंट्री देखें तो कितना दूर है. सो हमारी कंट्री 5 hour 30 minutes दूर है आपकी ग्रीनविच मेरिडियन से. ठीक है, जो आपका ग्रीनविच मेरिडियन है, द ग्रीनविच मेरिडियन दैट इज हियर, ये देख सकते हैं आप, ये जो आपका ग्रीनविच मेरिडियन यहाँ से निकल रहा है. तो यहाँ से जो हमारी कंट्री है, दिस इज आवर कंट्री, सो इट इज 5 hours 30 minutes अहेड. 5 hours 30 minutes आगे हमारा टाइम है. Some country, okay, so it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. or 2 p.m. in London. Okay. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. कई ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत बड़ी हैं और वहां पर बहुत सारे टाइम जोन्स हैं. दैट इज वाई उन्होंने मल्टीपल स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम. रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. यू कैन सी इन दिस मैप, दिस इज योर कंप्लीट रशिया. ये ऊपर जो है ये आपका पूरा रशिया है. सो इट इज सो बिग लैंड मास दैट यहाँ पर आप देखते हैं 11 टाइम जोन्स एग्जिस्ट करते हैं. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करा गया है, हर एक घंटे का टाइम जोन है. Each zone thus covers 15 degree of longitude. That means अगर ये आपकी अर्थ है तो this is your one zone, this is your second zone, this is your third zone. और हर जोन कितनी कितनी डिग्रीज पर है? 15 डिग्री. ठीक है, सो 15 डिग्री, देन 30 डिग्रीज, देन 45 डिग्रीज, ऐसे. इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 15 डिग्रीज का डिफरेंस है. सो दिस इज व्हाट इज योर, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम होना क्यों जरूरी है? सो दैट ऑल ओवर द कंट्री एक लोकल टाइम रहे, एक सिमिलर टाइम रहे. अदरवाइज आप देखेंगे कि सब तरफ अलग अलग टाइम हो रहा होगा. ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपके पास में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए. एंड हमारी कंट्री ने उसे 82 डिग्रीज 30 मिनट्स लिया है. सी आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज रिटन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. 82 डिग्रीज, डिग्रीज का सिंबल देखो 30 और ये मिनट्स का सिंबल होता है, एंड देन यू हैव ईस्ट. क्लियर? सो आई होप दैट दिस हैज मेड सेंस टू यू. एंड विद दिस हमें लास्ट पैराग्राफ इसका कंप्लीट करना था. And we have completed this last portion of your chapter also. Now we will be quickly having a revision to this complete chapter.
ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस पूरे चैप्टर का हम रिविजन करेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। ओके, सो आपको नोट से भी दिखा दिया जाए यहाँ पर, सो यू कैन सी हियर, ये हमने पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो आप देखेंगे 1 डिग्री जो अर्थ का मूवमेंट होगा एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने में, उसको कितनी देर लगेगी, 4 मिनट्स। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, time at 15 degree east of Greenwich will be ahead 1 p.m. ठीक है, so this all we have discussed. फिर हमारे पास में स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, ये भी अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पर बस मैंने इनको पॉइंटर्स में डाल दिया है। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, हम ग्रीनविच लाइन से ईस्ट में लोकेटेड हैं। ठीक है, और हम कितना अहेड हैं, 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन।